BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. بہاولپور سانحہ میں کم از کم 150 افراد ہلاک. کیا بروقت اقدامات اور مناسب سہولیات سے جانیں بچائی جا سکتی تھی؟ جمعرات کے حملے کے بعد پاڑا چنار میں سوگ اور احتجاج. مقامی افراد کہتے ہیں کہ حکومت نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے. اور شہلا بی بی کے فیورٹ بیٹسمین ہیں اے بی ڈیویلیئرز. دیکھیے گا انہیں اپنا کرکٹ کا شوق پورا کرنے میں کن مشکلات کا سامنا ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب کے جنوب میں واقع شہر احمد پور شرقیہ کے قریب آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی شناخت کا عمل بھی مکمل نہیں ہو پایا. یہ افسوسناک واقعہ کیسے رونما ہوا، اس کی سرکاری طور پر تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں. تاہم وہاں ماتم مناتے لوگ اب سانحے کے حوالے سے حکومتی کارکردگی کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر تراز. 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. محمد حیات کی بیوی، 7 سالہ بیٹے، ایک چھوٹے بھائی اور بھابھی کا کچھ پتہ نہیں. صرف ایک بیٹی کا پتہ چل سکا. وہ زخمی حالت میں ملتان کے ہسپتال میں ہے. یہ لوگ اتوار کے روز احمد پور شرقیہ کے قریب الٹنے والے آئل ٹینکر کو دیکھنے گئے تھے، جس میں آگ لگ گئی اور 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے. ہسپتال میں گیا ہے، گھومتے پھرتے انہوں نے سیمپل لیا. سیمپل لے کے انہوں نے کہا جب بھئی یہ مل جائے گا تو ڈیڈ باڈی مل جائے گی، نہیں تو نہیں دیں گے، ہم دفن کر دیں گے. محمد حیات کی طرح اس علاقے کے دیگر لوگ بھی سوالات اٹھاتے ہیں. جب ٹینکر الٹا تو پولیس کیوں نہیں آئی؟ لوگوں کو اس کے قریب کیوں جانے دیا گیا؟ زخمیوں کو ہسپتالوں میں پہنچانے میں دیر کیوں لگی؟ اور قریبی ہسپتالوں میں برن سینٹر کیوں نہیں تھے؟ کچھ طبی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ایک برن سینٹر یہاں سے قریبی شہر بہاولپور میں موجود ہوتا تو اموات کم ہو سکتی تھیں. جائے وقوع کے قریب ترین بڑا شہر بہاولپور صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، مگر وہاں موجود ہسپتالوں میں جھلسے افراد کے علاج کے لیے سینٹر موجود نہیں تھے، تو زخمیوں کو 100 کلومیٹر دور ملتان بھیجا گیا. کچھ ڈاکٹروں کا خیال ہے وقت پر پہنچنے سے بہت سے لوگوں کی جان بچ سکتی تھی. تو جو ڈیتھس ہونی تھی موقع پہ، جو برن تھا وہ تو 3 پیشنٹ موقع پہ برن ہو گئے تھے سر. باقی پیشنٹس ہمارے پاس پہنچے ہیں انشاءاللہ. ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں سر، کیونکہ پرسنٹیج آف برن جو ہے نا بہت زیادہ ہے. آپ نے پیشنٹس کو وزٹ کیے دیکھیں، مور دین 90%، مور دین 70% برن ہے سر. اس میں کوشش کی جائے گی سر. اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پھر لنگ انفیکشن ہو جاتی ہے، سیپٹیسیمیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سر. اب مرنے والوں کے لواحقین کو ایک لمبے انتظار کا سامنا ہے. ان کے پیاروں کی شناخت ہو پائے تاکہ وہ انہیں باعزت دفن کر سکیں. مگر شناخت کے اس عمل میں کتنا وقت درکار ہوگا، اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. عمر دراز، BBC نیوز، احمد پور شرقیہ. آئیے اب بہاولپور سے پاکستان کے شمالی علاقے پاڑا چنار چلتے ہیں، جہاں گزشتہ جمعے کو 2 بم دھماکوں میں کم از کم 80 افراد ہلاک اور 200 کے قریب زخمی ہوئے تھے. ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ حکام نے ان سے رابطہ نہیں کیا اور دکھ کی اس گھڑی میں ان کی مدد کو نہیں آئے. پاڑا چنار کے ایک رہائشی علی افضل بھی ہیں، جن کے ایک بھتیجے ان دھماکوں میں ہلاک اور دوسرے زخمی ہوئے ہیں. کچھ دیر پہلے ہی میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے واقعے کی تفصیل کچھ یوں بتائی. جب پہلے دھماکہ ہوا تو لوگ امدادی کارروائی کے لیے وہاں پہ پہنچے، جس میں میرے 2 بھتیجے بھی شامل تھے. اس دوران انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک خودکش حملہ جو ہے وہ ہنس رہا ہے اور موبائل پر کسی کو بتا رہا ہے یا اسی طرح پوز بنا رہے ہیں تاکہ لوگ جمع ہو جائے. تو خودکش حملہ کو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا. اس دوران اس نے خود کو اڑایا ہے اور اس کے نتیجے میں میرا ایک بھتیجا انجینئر مجاہد افضل موقع پر شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا بھتیجا انجینئر وجاہت افضل شدید زخمی ہوا ہے، جو کہ تاحال ہسپتال میں زیر علاج ہے. علی افضل صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا اس واقعے کو گزرے آج 4تھا دن ہے. متاثرین کے جو لواحقین ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر کچھ نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی، اس سے پہلے جو بم دھماکے ہوتے تھے یہاں پہ پاڑا چنار میں، تو اسی روز گورنر کی جانب سے یا دیگر متعلقہ حکام کی جانب سے
इमदाद का ऐलान किया जाता था। इंतजामिया एहलकार मुतासरीन के घर जाते थे, इमदाद देते थे और अस्पतालों में जाकर हिदायत देते थे कि जख्मियों का बेहतर तरीके से इलाज किया जाए। लेकिन आज 14 रोज़ है, इंतजामिया का एक पॉलिटिकल मुहर्रर जिसको बाबू भी कह सकते हैं, वो भी अब तक किसी के पास नहीं गया। और दूसरी बात ये कर रहे हैं ये एहतजाजी मुजाहिरीन के मुल्क के दीगर इलाकों में, जिस तरह ये ऑयल टैंकर का जो इशू पैदा हुआ जिसमें काफ़ी जानी माली नुकसानात हुए हैं, उसमें भी आप देखें जांबाक अफराद को 20-20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि हमारे कबायली इलाकों में खासकर परचनार जो कि दहशतगर्दी का ज़्यादा वो है शिकार है, यहाँ पे 3 लाख जो है शादाब को दिए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये नाकाफी है, इसमें मुनासिब इजाफा किया जाए। अच्छा अली अफजल साहब, जहाँ तक ज़ख्मियों का ताल्लुक़ है, वहाँ जो उनका इलाज चल रहा है, क्या उसमें कोई मुश्किलात सामने आ रही हैं या वो ठीक ठाक से हो रहा है? क्या पाड़ा चिनार में ही हो रहा है या उन्हें दूसरे शहरों में ले जाया गया? जी, जख्मियों के हवाले से बताता चलूँ कि एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल पारा चिनार जो है, इसमें 18 बेडेड कैजुअल्टी है और बैक वक्त 261 जख्मी इस अस्पताल लाए गए। वो भी ऐसे हाल में कि किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है और शदीद किस्म के जख्मी थे। एक बेड पर 2-2, 3-3 जख्मी डाले गए और ज़मीन पर लिटाए गए इलाज के लिए, और दूसरे जो वार्ड थे वो भी खाली करा के उस पर भी जख्मी डाले गए। आइए देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर गुज़श्ता चंद रोज़ में पहले क्वेटा, फिर पाड़ा चिनार और बहावलपुर में मासूम लोगों की हलाकतों पर क्या लिखा जा रहा है। शोएब तन्हा अबू ज़हबी से लिखते हैं, पाड़ा चिनार और क्वेटा में शहीद होने वालों के लिए मज़म्मती बयान तक नहीं। वहाँ शहीद होने वालों के लिए 2-2 लाख और बहावलपुर में टैंकर हादसे में मरने वालों के लिए 20-20 लाख। इमरान सिद्दीकी कराची से लिखते हैं, क्वेटा, पाड़ा चिनार और अब बहावलपुर, कसरत से इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और अर्ज़ पाक को अमन व अमान और खुशहाली अता फरमाए। शहजाद मकसूद लाहौर से लिखते हैं, ये गुर्बत ही थी जिसकी वजह से वो बदनसीब लोग बग़ैर पैसा खर्चे तेल लेने निकल पड़े थे। खुदा इस मुल्क के लोगों को अपनी अमान में रखे। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। इंडियन रियासत हरियाणा में हजूम के हाथों हलाक होने वाले जुनैद का गांव आज ईद के रोज़ सोगवार है। 16 बरस के जुनैद को चलती ट्रेन में जुमेरात के रोज़ मार मार कर हलाक कर दिया गया था। गाँव वालों का कहना है कि इस वाक़े पर हुकूमत अब तक खामोश तमाशाई बनी हुई है। ज़िला बल्लभगढ़ के खंडावली गाँव से नामा निगार नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट उमर आफरीदी पेश कर रहे हैं। ईद के रोज़ बाजू पर काली पट्टी, उस गहरे गम का इजहार जो खंडावली के गांव वालों पर तारी है। मकतूल जुनैद अपने भाई के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए दिल्ली गए थे। ट्रेन में वापसी पर कुछ लोगों ने उन्हें इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो मुसलमान हैं। ओखला से 20-25 बंदे चढ़े थे। उसने मेरे सर पर टोपी देख के कहा, तुम मुल्ले हो, कटल ले हो, तुम बीफ खाते हो, मीट खाते हो। तो उन्होंने गाली गुफ्तार भी दी और पाकिस्तानी बोला। मेरे सर पे से टोपी फेंक के मारी उन्होंने। दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की उन्होंने। फिर हम तुगलकबाज से अपने भाई को फ़ोन किया, हेल्प के लिए आ जाओ। जैसी ट्रेन बल्लभगढ़ से चली, वहाँ से चाकू मारना चालू कर दिया उन्होंने। तो वहाँ से जब शाकिर को चाकू लगा, जुनैद गया बचाने के लिए, उसको भी, फिर मैं भी गया बचाने के लिए, मेरे को भी 2-3 चाकू लगे। गाँव वालों में इस बात पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि हरियाणा की हुकूमत की तरफ से अभी तक उनसे कोई मिलने भी नहीं आया। हमने आज एक शांतिपूर्वक जो विरोध किया है वो काली पट्टी लगा के, उसका देखते हैं सरकार के ऊपर क्या असर पड़ता है। अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा ने हमारी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं किया और आरोपी भी अभी तक पकड़ में नहीं आई, गिरफ्त में नहीं आई है। पुलिस ने इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में रमेश नामी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका कहना है कि हुजूम ने उसे ये बावर कराया था कि इन लोगों ने गाय का गोश्त खाया है। इंडिया की कई रियासतों में गाय को ज़िबा करने पर पाबंदी है। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी और शुमाली आयरलैंड की एक छोटी जमात के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, जिससे हुक्मरान जमात को ऐवान में मामूली अक्सरियत हासिल हो गई है। अगरचे दोनों जमातों के दरमियान हुकूमत में बाकायदा शराकत नहीं होगी, ताहम DUP के साथ मुआहदे के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को ऐवान में ज़रूरी अददी अक्सरियत हासिल हो गई है। थाईलैंड और म्यांमार में पुलिस ने $80 करोड़ मालियत की मनशियात नजर आतिश कर दी हैं। इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के यौम इंसदाद मनशियात की निस्बत से खुसूसी तक़रीबात का अहतमाम किया गया था। हालिया बरसों के दौरान दोनों मुल्कों में बड़ी तादाद में कुदरती और मसनूई नशावर अशिया कब्जे में ली गई हैं।
और बरतानिया में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि सूरज की अल्ट्रावायलेट लाइट यानी बालाए बनफशी रोशनी में जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नामी कॉम्पाउंड पैदा होता है जो चंबल या एक्जिमा की अलामात में कमी लाता है। ये केमिकल सोजिश में कमी का बायस बनता है। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन से मौज़ूआत में आपकी दिलचस्पी रही। न इफ्तार न ईद पार्टी, ट्रंप ने रिवायत तोड़ दी, इंडिया से ईद पर सेतु तिवारी का कॉलम, और जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन टीम की कप्तान कहती हैं कि उन्हें पाकिस्तानी टीम के जीत के करीब पहुंचने पर हैरत नहीं हुई। इन खबरों और कॉलम्स में आपकी खासी दिलचस्पी रही। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा मोसुल से BBC की नामनिगार और लग्यूरन की खुसूसी रिपोर्ट। और शहला बीबी को क्रिकेट का जुनून है, कहती हैं कि यकसा मौके मिलें तो वो भी अपना लोहा मनवा सकती हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इराक़ी शहर मोसुल में नाम नहाद दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने शहर के कदीम हिस्से पर दोबारा कब्जा करने के लिए इराक़ी फोर्सेस पर एक जवाबी हमला किया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इराक़ी फोर्सेस ने यह हमला पसपा कर दिया है, ताहम शहर के इस इलाके में अब भी लड़ाई जारी है। मोसुल से हमारी नामनिगार और लग्यूरन की रिपोर्ट पेश कर रही हैं समरा फातिमा। मोसुल में अगले महाज की जानिब पेशकदमी, आपको भागने के लिए तैयार रहना पड़ता है और गोलियों से होशियार भी। इमरजेंसी रिस्पांस डिवीज़न के फौजियों की पेशकदमी मुसलसल जारी है। यहाँ उनका टारगेट एक बड़े अस्पताल की इमारत। ये देखने के लिए कि ये जंग किस तरह नाम नहाद दौलत इस्लामिया की दहलीज तक पहुंची, हम अगले मोर्चों तक गए। शहर के दरमियान जारी इस जंग में अब दोनों फरीक इतने करीब पहुंच चुके हैं जहां से दोनों एक दूसरे पर हैंड ग्रेनेड तक फेंक सकते हैं। मोसुल में जिन मकामात पर इराक़ी फोर्सेस दौलत इस्लामिया से बरसरे पैकार हैं, उनमें ये सबसे अगला महाज है। ये वो जगह है जहाँ से दौलत इस्लामिया का करीब तरीन ठिकाना महज 15 मीटर के फासले पर है। इन फौजियों ने हमें बताया कि ये फासला इतना कम है कि जब ये लोग जंगजुओं पर फायरिंग करते हैं तो उनके चेहरे भी देख सकते हैं। यहाँ लड़ने वाले फौजी ज़्यादातर जवान हैं जो इस शहर से खौफ के दौर को ख़त्म करने के जज्बे से सरशार हैं। इनका कहना है कि दाइश ने न सिर्फ आम शहरियों को कत्ल किया है बल्कि शहर में ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। अली मेहदी के बकौल वो मोसुल में ज़िंदगी बहाल करने आए हैं। ये है अस्पताल की वो इमारत जहाँ फ़ौजी कमांडरों के मुताबिक तकरीबन 200 गैर मुल्की जंगजू छुपे हुए हैं, जिनमें बरतानवी भी शामिल हैं। कर्नल फलाह अल अब्दान का कहना है कि ये बात उन्हें इंटेलिजेंस हुक्काम ने बताई है। कर्नल फलाह के बकौल वो बता सकते हैं कि ये जंगजू कहाँ से आए हैं, और अगर ये जंगजू नक्ल हरकत करते हैं तो फ़ज़ा से ड्रोनों की मदद से उन पर नज़र रखी जा रही है। यहाँ जंगजू पनाह की तलाश में अस्पताल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को भाग रहे हैं। कमांडरों ने हमें बताया कि इनमें फ्रांसीसी, चेचन और बरतानवी भी शामिल हैं। इनके अलावा यहाँ दौलत इस्लामिया के 3 कमांडर भी ज़ेर ज़मीन छुपे हुए हैं। इन लोगों की खिलाफत अब राख का ढेर बनती जा रही है और इनके ठिकानों पर फ़ज़ा से मुसलसल बमबारी की जा रही है। हमने 1 घंटे में 3 मरतबा बमबारी देखी। लगता है कि ये उस दुश्मन के खिलाफ इराक़ी फोर्सेस की आखिरी कार्रवाइयों में से एक है जो किसी वक्त इराक़ के 1/3 इलाके पर कब्जा कर चुका था। और लग्यूरन की रिपोर्ट। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC उर्दू की खुसूसी सीरीज़ खामोश ज़बाने के दौरान बनने वाली रिपोर्ट्स पर एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आलमी मुकाबले में फ़तह से एक बार वाज़ेह हो गई, और वो ये है कि पूरा मुल्क क्रिकेट का दीवाना है। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, चाहे शहरों से हों या गांव से, क्रिकेट का खेल सबको करीब लाता है। शहला बीबी उन पाकिस्तानियों में से एक हैं जो क्रिकेट की दीवानी हैं और रावलपिंडी की टीम में खेल रही हैं। शहला को अपने शौक़ को पूरा करने में किन मसाइल का सामना है और उनके इस खेल के तनाज़ुर में क्या आज़ाम है, देखिए शहला की कहानी खुद उनकी ज़बानी।
मेरा नाम शैला है और मैं वाह कैंट के पास एक गांव है पौड़मैना, वहाँ की रहायशी हूँ और मैंने तालीम हासिल किया है, MBA किया हुआ है मैंने मार्केटिंग में। और तालीम के साथ साथ मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इसलिए मैंने आगे अपनी फील्ड जो चुनी है, अपने पैशन को चुना है क्रिकेट को। फर्दर इसको पाकिस्तान नेशनल टीम में सिलेक्ट होना चाहती हूँ और पाकिस्तान कलर हासिल करना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी। पहले जब स्टार्ट लिया था तो मुझे आई वॉज होपफुल कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे अब टाइम गुजरता जा रहा है तो अच्छे से अच्छे प्लेयर्स नज़र आते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में उनके पास लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मुझे आई गेस कि अगर मुझे सेम हम सबको जो गांव देहात की लड़कियां उन सबको एक सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं तो हम भी अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। एक तो नैरो माइंडेड लोग हैं, उनको फेस करना पड़ता है, उनके लिहाज से लड़कियों का क्रिकेट खेलना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई भी गेम खेलना। उसके बाद हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, फिर उसके बाद जितनी हमारे पास किट की चीज़ें होती हैं वो कभी भी सही से प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती, लाइक इवन ग्लव्स, पैड्स। बैटिंग में डिविलियर्स अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका से, और बॉलिंग में रविंद्र जडेजा इंडिया, और पाकिस्तान में सईद अजमल। हमेशा होप, जब भी ग्राउंड में परफॉर्म करती हूँ तो अपनी बेस्ट देती हूँ और कहती हूँ कि कभी कोई सिलेक्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मेरा जब भी रावलपिंडी रीजन का मैच कभी हुआ है तो कभी कोई सिलेक्टर मैंने देखा नहीं। सब कहते हैं कि नेचुरली जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर होते हैं वो उनके पास बहुत वेरिएशंस होती हैं, लेकिन कभी अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा कोच नहीं मिला है जो कभी मुझे ये बात बताए कि आपने रिलीज़ किधर से करना है, अच्छा आपने बॉल को खींचना कब है, आपने फ्लाइट से कब देना है बॉल। तो ये खुद अपनी गर्ल्स के साथ बैठे हुए या उनके साथ ट्रेनिंग करते हुए ये बातें सीखी हैं, या फिर टीवी में देखते हुए काफ़ी कुछ सीखा है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।